ادب عوام نکلتے ہیں، کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرو، جو جیتا ہے اسے جیتنے دو، جو ہار گیا ہے اس کو ہرا دو، اور عوام پہ چھوڑو کہ وہ کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست موجود ہیں، پورے پاکستان میں ان کو ایک تاریخی مینڈیٹ ملا ہے۔ جماعت اسلامی موجود ہے، الحمدللہ ہم نے بہترین ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس شہر کراچی میں تو ہم نے دیکھا ہے ووٹ یا تو پی ٹی آئی کو ملے ہیں یا جماعت اسلامی کو ملے ہیں۔ پورے صوبہ سندھ میں دیکھا ہے ووٹ تو جی ڈی اے کو ملے ہیں یا جے یو آئی کے کچھ پاکٹ کو ملے ہیں، لیکن یہ پی پی کہاں سے آ گئی؟ یہ ایم کیو ایم کے دہشت گرد کہاں سے آ گئے؟ یہ بولی بن لاشوں کا کاروبار کرنے والے کہاں سے مسلط کر دیے گئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے، بھول گئے ہو وہ وقت جب رینجرز کے جوانوں کی لاشیں ریل کی پٹریوں سے ملتی تھی؟ تم انہی لوگوں کو ہم پر مسلط کر کے کیا میسج دے رہے ہو؟ فوج کو کیا میسج دے رہے ہو؟ قوم کو کیا میسج دے رہے ہو؟ کس کو کیا میسج دے رہے ہو؟ ہم بلدیہ فیکٹری کے 259 انسانوں کو، پاکستانیوں کو، اس صوبے اور اس شہر کے باشندوں کو نہیں بھول سکتے جن کو بھتہ نہ ملنے پر ان دہشت گردوں نے چلایا تھا، جن کو تم نے ہم پر مسلط کیا ہے۔ نہیں بھولیں گے ہم اپنے ان جلی ہوئی لاشوں کو، ہزاروں نوجوانوں کو جنہیں قربان کر دیا گیا۔ اور میں حیران ہوں کہ کن لوگوں نے یہ نقشہ گری کی ہے کہ ان کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ اور پہلے کام یہ کیا کہ ان کو بلا کر کہا لو 20,000 بیلٹ، یہ لو 10,000 بیلٹ، یہ صوبائی اسمبلی میں ڈال دو، یہ قومی اسمبلی میں ڈال دو، جاؤ جا کر قبضہ کر لو۔ پورے دن قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لوگ انہیں دھکیلتے رہے، بے شمار جگہ قبضہ بھی کر لیا۔ کتنے اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پولنگ ہی نہیں ہوئی، نہ اندرون سندھ میں نہ شہری علاقوں میں پولنگ ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر کراچی میں تو ہم نے 45 فارم لے لیے نا، کراچی میں تو ہم نے رزلٹ اکٹھا کر لیا، اس رزلٹ کے مطابق ایم کیو ایم کو جنن طریقے سے پورے شہر سے 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا، 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا۔ 15 سیٹیں تم نے تحفے میں دے دی، 25 صوبائی دے دی، پھر ریزرو سیٹ دے دی۔ پتا ہے ہمیں تم سینٹ میں بھی ان سے مہرے لگواؤ گے، اپنی پسند کا مینڈیٹ حاصل کرو گے۔ یہ بکاؤ مال ہے، یہ بکاؤ مال ہے۔ کراچی نے ایم کیو ایم کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اپنے سروں سے اٹھا کر پھینک دیا۔ اہل کراچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ہے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے، انہوں نے خود فوج کے ساتھ مذاق کیا ہے، انہوں نے آئین کے ساتھ مذاق کیا ہے، انہوں نے پاکستان، سندھ اور کراچی کے ساتھ مذاق کیا ہے، حیدرآباد کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ایم کیو ایم کو لے آئے، جو باقی سیٹیں بچیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی۔ اور اندرون سندھ میں تو جو حال کیا، پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیا گیا، پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے کر لیے گئے، جہاں پولنگ نہیں ہوئی اس کا بھی رزلٹ بنا دیا۔ لہذا یہ جو عوام ہے جن کا ووٹ ہے، آج کا یہ احتجاج عوام کی ترجمانی کر رہا ہے، آج کا یہ احتجاج پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے اداروں کی سب کی ترجمانی کر رہا ہے کہ مذاق ختم کرو۔ ہمیں ادارے بھی عزیز ہیں، ہمیں الیکشن کمیشن بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم عوام کا مینڈیٹ بھی لینا چاہتے ہیں۔ یہ دراریں مزید بٹ ڈالو، یہ قوم متحمل نہیں ہو سکتی، یہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان دوریوں کو اگر مٹانا ہے تو اپنی اپنی پوزیشن پر واپس جاؤ، مینڈیٹ کا احترام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، حالات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جمہوری جدوجہد کریں گے، سیاسی جدوجہد کریں گے، عدالتی جدوجہد کریں گے، قانونی جدوجہد کریں گے، پرامن رہیں گے۔ ہماری طاقت عوام کا احتجاج پرامن احتجاج ہے، پرامن مزاحمت ہی ان کی تمام حرکتوں کا جواب ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ جدوجہد کو تیز تر کریں گے۔ ابھی قائدین میٹنگ کریں گے، تقریروں کے بعد وہاں پر حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن میں ایک مرتبہ پھر جو جے یو آئی کے قافلے پر شیلنگ کی گئی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ جمہوریت دشمنی ہے، یہ عوام کو کچلنا ہے، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔
صبح جو ہماری GDA کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو جو آج یہاں ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں، ان میں سے جو چھوٹ گئی وہ یہاں آ کر احتجاج میں موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اس لیے جد و جہد جاری ہے، تحریک بھی جاری ہے۔ آئندہ کا لائحہ عمل بھی دیں گے، مشاورت بھی کریں گے، اندر میڈیا ٹاک بھی کریں گے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں پر موجود بھی رہیں گے اور اپنی جگہ پر استقامت سے کھڑے رہیں گے۔ قائدین کا خطاب سنیے، آئندہ کا لائحہ عمل تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم مشاورت کے بعد جاری کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس شہر کراچی سے۔ عوام نے جس کو سب سے بڑا مینڈیٹ کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس کے سندھ کے صدر علیم عادل شیخ ہمارے ہر دل عزیز دوست جیلوں کی سلاخوں کو کے پیچھے تھے، اب ان سے باہر آ کر سڑکوں کے اوپر آپ کے درمیان موجود ہیں۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں علیم عادل شیخ، صدر سندھ پاکستان تحریک انصاف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج ہم شکر گزار ہیں GDA کے سربراہ پیر صاحب وغیرہ کے، سائیں صدر الدین شاہ راشدی صاحب کے جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں، GDA کی قیادت ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب، صدر عبدالرحیم صاحب ادھر موجود ہیں، کہ انہوں نے ہم سب کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جن کا مینڈیٹ مختلف طریقہ واردات سے چھینا گیا، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، جس کے لیے ہم GDA کے شکر گزار ہیں۔ اور اس وقت یہاں موجود جماعت اسلامی کے قائدین، امیر کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ دیکھیں جی، میں بڑی مذمت کرتا ہوں جو کچھ اس کو شارع فیصل پہ ہو رہا ہے۔ وہاں پہ JOI کے قافلے کے اوپر باقاعدہ شیلنگ، لاٹھی چارج، وہاں پہ جو نا ہمارے کتنے جو نا کارکن حضرات، مولوی حضرات وہاں پہ زخمی ہیں، اور میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ بات انتظامیہ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، ان کو چھوڑیں۔ ہم یہاں پرامن کھڑے ہیں، آپ کیوں وہاں پہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں؟ آپ ان کو آنے دیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، اس تک سے ہم کھڑے ہو کے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ GOI کے قافلے کو آنے دیں، اگر نہیں تو اس کے پر آنے والے دنوں میں بہت سخت قسم کے جو احتجاج ہوں گے، جس کو آپ روک نہیں سکیں گے۔ میری ابھی اس اسٹیج سے جتنی بھی انسانیت جو کھڑی سن رہی ہے، مہربانی کریں اور آپ JOI کے قافلوں کو آنے دیں، جیسے ہم یہاں پرامن ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا وحشیانہ انداز میں لاٹھی چارج ہوتی ہے کہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ میں اسی بات پہ آ رہا تھا، میں انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں، IG سے DIG SSP سے کہنا چاہتا ہوں، کمداری نہ کرو ان ڈاکو، لٹیرے، چور وغیرہ کی جو سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ اور اس وقت ہم ایک نکاتی ایجنڈے پہ GDA، جماعت اسلامی، JOI، PTI اکٹھی ہے، اور جناب راشد صوبہ صاحب ایک نکاتی ایجنڈے پہ اس جعلی مینڈیٹ کو چوروں سے مقابلے کے لیے آ رہے تھے۔ ان پہ جو تشدد ہو رہا ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں 2 سال سے ہمارے ساتھ تم یہی کر رہے ہو، ایک ایک چورا، ایک ایک چہرہ، ایک ایک افسر ہماری آنکھوں کے کمپیوٹر کیمروں میں وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہو چکا ہے، بھولیں گے نہیں۔ اور اس وقت جو ہو رہا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، پورے شہر میں ناکہ بندی ہے، پورے شہر میں ریلیز کو روکا جا رہا ہے، پورے شہر میں خوف کس چیز کا ہے؟
खौफ इस चीज का है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनका चोरी का मैंडेट पे नकाब हो रहा है। इस चोरों के नकाब उठ रहे हैं और इनके गंदे मगरूर चेहरे ये क़यादत सबके सामने वादे कर रही है। मैंडेट चोर, पीपल्स पार्टी मैंडेट चोर। जवाब दीजिएगा, मैंडेट चोर, पीपल्स पार्टी मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, पीपल्स पार्टी मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, एनक्यूएम भी मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर। और सबसे बड़े डाकू मैंडेट चोर, नून लीग तो है ही मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर। इशू ये है कि हम आज इकट्ठे हैं अपना जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया। प्रेसिडेंट में जीडीए, जेवाई, एसयूपी और दीगर जो हमारी कायदीन है कौमी अवामी पार्टी, कौमी अवामी तहरीक, पूरे सिंध में कराची हैदराबाद को छोड़ के, अर्बन एरियाज को छोड़ के जीडीए को मुख्तलिफ अंदाज में इनके वोट्स को चोरी किया गया। मरूसा ही पोलिंग स्टेशन के अंदर ही चोरी कर लिया गया। लेकिन शहरों में क्या हुआ, जहां या वोट पीटीआई को पड़ा या जमात इस्लामी को पड़ा, उधर हमने अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म 45 ले लिए हैं। ये फॉर्म 45 जल्लाद की रस्सी की तरह इनके गले में बंधे रहेंगे, जिस तक दिल का क्लिक और ये सब नीचे इंशाअल्लाह। ये फॉर्म 45 इनके गले का फंदा है और इलेक्शन कमिश्नर के और इलेक्शन कमीशन के गले का भी फंदा है, इसलिए कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी इलेक्शन कराया है। इंशाअल्लाह मेरा कप्तान आएगा और इनको फांसी पे लटकाएगा। कानून को हाथ में नहीं लेंगे। आइन कहता है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इनकी जिम्मेदारी। झरलू इलेक्शन कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ, झरलू इलेक्शन कराता। फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है जिसमें इलेक्शन कमीशन नाकाम हो। उसके अलावा पंजाब में इन्होंने इलेक्शन डिले किया, केपी में डिले किया, मरकज में डिले किया और आइन तोड़ दिया। आइन तोड़ने वाले की सजा मौत है, फांसी है, फांसी का फंदा है। आर्टिकल 6 इंशाअल्लाह गवर्नमेंट में आएंगे, इस इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। और ये तो हो गए डाकू। जब कोई डाका डलता है तो उसका सामान किसी को बेचा जाता है, उसके बेनिफिशरीज भी होते हैं जो कि लूट का माल के बेनिफिशरी होते हैं। तो ये नून लीग, पीपी, एमक्यूएम ये उस लूटे हुए वोट के बेनिफिशरी है। इंशाअल्लाह सहूलतकारी में इनको भी माफ नहीं किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, ये जिद्दोजहद है। अभी उसामा रज़ी भाई हमारे बड़े भाई हैं, मोहतरम है, ये कह रहे थे तेज हो, तेज हो, ये रुकने वाली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके कश्मीर तक की क़यादत यहां मौजूद है। साईं ज़ैन शाह जैसे दलेर लीडर भी मौजूद है। कहने शरीदा से तमाके मश्किल कबो तमाके माफ न कबो तमाके इंशाअल्लाह सबनी सा गॾ जी पंहिंजो फराज़ कंदासीं, पंहिंजी चोरी मोटवाईंदासीं इंशाअल्लाह। तो मैं बताना चाहता हूं, कराची में 20 सीटें एमएनए की 20 सीटें हमसे चोरी की गई। और चोर कौन जानते हो? कौन है चोर? किसको दी गई? वो तो डाकू है, उन टारगेट किलर्स को दी गई जिसने शहर के बच्चों को मरवाया, जिसने शहर में टारगेट किलिंग कराई,
जिन लोगों ने लाशें गिराई, जिन लोगों ने बोरी पर लाशों का कल्चर छोड़ा, क्या दोबारा वही कल्चर लाना चाह रहे हो? मंजूर है कराची वालों? ये टारगेट क्लियर मंजूर है? ये बोरी में बंद लाशों वाले मंजूर है? ये फटाखोर मंजूर है? ये बल्दिया फैक्ट्री में जिंदा जलाने वाले मंजूर है? तो कराची और पूरा मुल्क इसको मंजूर नहीं कर रहा, तो इनको भेजने वालों, इनको मुसल्लत करने वाले सोच लो कि जिनको इनके पास तो कुछ भी नहीं था, जिनको कराची और खासतौर पे पूरे सिंध में इनको हमारे ऊपर सवार किया गया, इस असेंबली में इन चोरों को भेजा। एक सीट नहीं थी एमक्यूएम की, 20 एमएलए इधर है हमारे पास, तो हैदराबाद की हमारे पास है। और अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता तो सिंध असेंबली में ये लोग होते, सिंध में हमारी इत्तेहादी हुकूमत होती जिसको पीर साहब वगैरह लीड करता, अगर हमारा असली मैंडेट होता तो। और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 180 सीटें हमारे पास हैं, 180 सीटें हमारे पास हैं, 70 अभी वापस लेनी है इंशाल्लाह। पाकिस्तान में जिसके साथ पूरी कौम की दिलों की धड़कन धड़कता है, जिसके साथ पूरी कौम का इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा इंशाल्लाह। और मैं आगे और मैं कहना चाहता हूं, मैं आज पीर साहब वगैरह का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं। मैं हाफिज साहब का कि इनके जिस तरीके से हाफिज साहब ने आके जो बयान दिया कि मैंडेट इस सीट पे इनका था, मैं कहना चाहता हूं वो ऐसा इन्होंने इन बेशर्मों के लिए एक मैसेज दे दिया कि हक की बात करने वाले अभी जिंदा है, एक भी हक सच वाला जिंदा होगा तो इंशाल्लाह इंसाफ का निजाम खत्म नहीं हो सकता। और पीर साहब ने जो जामशोरों में बात की कि अगर इमरान खान चोर है तो हम सब चोर हैं, इसका मतलब है ना इमरान खान चोर है ना ये सब चोर है, ये जाली मैंडेट चुराने वाले सब चोर है। जिसका मैं नाम ले सकता हूं वो भी चोर है, जिसका नहीं ले सकता वो भी चोर है। और इंशाल्लाह मैं बताना चाहता हूं, हम लोग 10 अप्रैल के बाद जो हम पे बीत रही है, हमारे कारकुनों पे बीत रही है, आज सुबह भी हम 110 हमारे उम्मीदवारान, हमारे जली सुदूर, हम सब की दहशतगर्दी की डेट थी, मुझ पे तो हम सब वहां थे। 110 लोग सारे उम्मीदवार चुन के इन्होंने 28 जनवरी को बंद किया था। हम लोग तो सियासी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन ये माशी दहशतगर्द सिंध असेंबली में बैठे हैं। 22,000 अरब का टीका लगाने वाला सरदारी माफिया की दोबारा हुकूमत आ गई। अल्लाह ताला रहम करे हमारे सूबे के ऊपर, अल्लाह ताला इन डाकुओं से हमें बचाए, इन चोरों से हमें बचाए। तो इंशाल्लाह ये मुख्तलिफ अंदाज से ये मुश्तरका मुत्तफिका इस डाके में जो हमारा मैंडेट पे डाका पड़ा, जो फ्रॉड इलेक्शन हुआ, इसके खिलाफ ये जिद्दोजहद जारी रहेगी कराची जिले के पूरे सिंध में। और जहां जिस अंदाज से साईं हमें प्रोग्राम देंगे और हम भी इनको देंगे, जमातला भी हमें देगी, साईं भी इंशाअल्लाह भी हमें देंगे, पलीजो साहब भी बताएंगे इंशाअल्लाह। ये भूल जाए कि ये 5 साल की हुकूमत है। आज सुन लो, आज सुन लो, आज सुन लो, मैं बिना पीर हूं ना मीर हूं, लेकिन पीर साहब के स्टेज पर हूं तो बताना चाहता हूं कि 5 महीने भी नहीं चलेगी ये हुकूमत इंशाअल्लाह। 5 साल तो भूल जाओ, ये चोरी का माल हजम नहीं होगा। 5 महीने में इंशाअल्लाह उल्टे मुंह आप लोग गिरोगे और इंशाअल्लाह सिंध में भी माइनस पीपी माइनस एनटीएम हुकूमत बनेगी। और हमने तो बड़े ये लोग पहुंच रहे थे, हम अचानक बिलावल जरदारी के लिए बात करता हूं, बड़ी सियासी रवादारी की बात करते थे, कहते थे मैं आऊंगा पीटीआई के वर्करों को छोड़ूंगा, खवातीन को निकालूंगा। बिलावल साहब ये न्याणियों के जीवन ये आज जिन्हनि के तव्हां सिंध में तव्हांजी पुलिस कंदा हुया आहिनि, ये न्याणियों असांजी सिंध जूं आहिनि, ये सिंध की बेटियां हैं जिसको तुम्हारे चमचों ने, तुम्हारी पुलिस ने, तुम्हारे लोगों ने आज डंडा मार के डाला है। ये वक्त करीब है, सिंध के अवाम डंडे मार के
डाकुओं को, चोरों को सिंध असेंबली से बाहर निकालेगा इंशाअल्लाह। हम अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की, बहनों की लाज रखने के लिए बाहर निकलो ना। तैयार हैं बच्चियों पर जो गाती हुई है, जो डंडा मारती हुई है, हम बदला लोगे। इंशाअल्लाह आखिर में मैं बताना चाहता हूं कि आज भी हम तो देखिए जी, इस वक्त नारा हम चाहेंगे कि इस वक्त हमारा एक ही नारा है जो मैंडेट के खिलाफ है। हम सब इकट्ठे हैं। लाजिम बात है, हमारे अलग नजरियात हैं, अलग हमारे लीडर्स हैं, लेकिन एक हमारा दुश्मन एक है, वो है जिसने मैंडेट चुराया है। इस वक्त असली हमारा जो दुश्मन है वो मैंडेट चोर है और वो जिन्होंने चुरवाया है। तो इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। आज भी इन्होंने घेराव किए हुए हैं। जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह मैं शहर कराची के, हैदराबाद के और पूरे पाकिस्तान के अवाम का शुक्रगुजार हूं कि हम जेलों में थे। मैं जेल से इलेक्शन लड़ा, 84,000 वोट दिए और 10,000 के मैंडेट से उनको जितवा दिया गया। तो मैं शुक्रगुजार हूं और मैं फैसला साजों से कहना चाहता हूं, आपने इस कौम की उम्मीद तोड़ दी है। आपने नौजवान वोटर्स को एक ऐसी खाई में धकेल दिया जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुल्क किसके हाथों में है। वो गुस्से में है, इस गुस्से से डरो। ये नौजवानों के दिलों में गुस्सा है, ये पाकिस्तानियों के दिलों में गुस्सा है। अब हमारा मैंडेट नहीं, आपका वोट चोरी हुआ है। इंशाअल्लाह एक एक वोट की वापसी तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। मेरे साथ मेरे तहरीक इंसाफ के लीडर्स, हमारे उम्मीदवार भी साथ हैं। बहुत सारे लोग रास्तों में रोके गए हैं और जो दीगर तमाम जमातों के, आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साबिक एमएनए, आलमगीर खान साहब हमारे साबिक एमएनए, शेर खान साहब और दीगर हमारे जो उम्मीदवार मौजूद हैं, उन सबको सलाम पेश करता हूं। और मैं दिल की गहराइयों से अपने लीडरशिप की जानिब से, अपनी क़यादत की जानिब से, अपनी कोर की जानिब से इन तमाम जमातों को कि जो आज शहर कराची में जहां सबसे बड़ा डाका हमारे ऊपर लगा, आज यहां इकट्ठे हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी सीटें भी वापस लेंगे। और आज मैं स्टेज से ऐलान करता हूं, सरदार साहब, अब्बासी साहब, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपकी भी आखिरी नशिस्त के हक वापस लेने तक, वो री इलेक्शन में हो या जैसे हो, हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे कप्तान ने कभी किसी को बीच में नहीं छोड़ा, अपनी कौम के साथ खड़ा हुआ। आज भी खड़ा है, जेल में पड़ा है लेकिन खड़ा है, जेल में पड़ा है लेकिन खड़ा है। हम भी इंशाअल्लाह अपने इमरान खान के वर्कर्स हैं। इंशाअल्लाह आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक, आखिरी सीट तक इसमें इसको जद्दोजहद जारी रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची सिंध के सदर आपसे मुखातिब थे। कायदीन हमारे दरमियान पहुंच चुके हैं और अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूं वो हमारे पूरे सिंध के एक अजीम रहनुमा है, एसयूपी के, जीडीए के जनाब साईं सैयद जैन शाह साहब को दावत दे रहा हूं कि वह आपसे मुखातिब हो। जनाब जैन शाह साहब। दोस्तों और अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सजी क़यादत काफ़ी दोस्तन जे सहूलत ला ऐं ऑडियंस जे लाइ उर्दू में ॻाल्हाईंदासूं। हमारी जीजी की क़यादत, जमात इस्लामी की क़यादत, पीटीआई की क़यादत और कारकुन जो इधर जमा हुए हैं, हम सबको वेलकम कहते हैं। लेकिन इस उम्मीद से आज सारा कराची बंद किया हुआ है, लेकिन आप लोग किसी तरह से भी, हम लोग इंडिविजुअली तौर पे इधर जो जो पहुंचे हैं उन सबको सलाम। हमारे शेख साहब जो बोल रहे थे, कुछ के नाम लेता हूं, कुछ के नहीं लेता। तो मेरा ख्याल है कि हाफिज नईम ने काफी तफसीली बातें की। हमारे यहाँ एक प्री इलेक्शन रिगिंग हुई, वो हल्का बंदियों से लेकर और आखिर तक जो केयरटेकर गवर्नमेंट बनी वहां तक
जो सिस्टम बनाया उसमें जो पूरी रिगिंग हुई, एक वो केस है। और जो इधर केयरटेकर सिंध की गवर्नमेंट बनी मकबूल बाकर की, जिन्होंने इस जरदारी ग्रुप को जिस तरह पीपुल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया, हम पहले वो है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसने हल्का बंदियां की, एतराजात नहीं सुने और जो उन्होंने आखिर तक पोलिंग स्टेशन तक जो ये फैसले किए, उनकी हम मजम्मत करते हैं। इनके सहूलतकार कौन कौन बने, माजरत से बगैर नाम लिए, लेकिन मैं ओहदे का नाम लूंगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने मना कर दिया कि जजेस नहीं आएंगे और जजेस हम नहीं सहूलत देंगे, तो दूसरे सहूलतकार वो बने। और उन्होंने इधर इलेक्शन सहूलतकार बने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मौका दिया कि डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तलिफ इनके मुकर्रर किए हुए लोग वो आरओज और बीआरओज बने। तीसरी सहूलतकार, जो पोलिंग स्टेशन पे हमारे यहाँ ज्यादती हुई पोलिंग डे पे, कि कई पोलिंग स्टेशन से हमारे दोस्त उठा लिए गए। 1/3 ऑफ द पोलिंग स्टेशन हमारे इलाके में सारे हट गए और उन्होंने मोहरें लगाई और ठप्पे लगाए, जिसका हम हिसाब 45 में भी नहीं ले सकते और 47 में भी नहीं ले सकते। ये सहूलतकार बने और टेलीफोन बंद की। ये भी फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन था कि पीटीए को कहा कि ये टेलीफोन सिस्टम और पूरा ये बंद था और उनको ये मौका मिला पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करके और मोहरें लगाई और वो हजारों में 10,000, 20,000, 30 यानी लामहदूद लगाई। इलेक्शन कमिश्नर ने आरओज के थ्रू जो बुक्स बांटी और जो मोहरों के अलावा जो ज्यादा निकली पोलिंग के डिब्बों में से, वो अलग एक फ्रॉड था। और पोलिंग के बाद जो फ्रॉड हुआ, जिसकी अभी जमात इस्लामी ने भी बात की, जिसकी पीटीआई ने भी बात की, ये सारी चीजें हैं कि 45 और 47 में फर्क है। तो इसकी ये भी मैनेजमेंट थी कि अगर इन पहले 2 स्टेप से प्री इलेक्शन डे से भी अगर निकली, तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका इजहार किया। मैं कह रहा हूं कि ये जाली इलेक्शन सहूलतकार, और आखिर में 18 में हर पोलिंग स्टेशन से फौज तैनात की गई थी। लेकिन इधर हमारे आर्मी के हेड्स ने, उधर अख्तर मेंगल ने कहा कि कोर कमांडर और दूसरे, लेकिन एक मुल्क का बना तो उनके हेड ने मना कर दिया कि पोलिंग स्टेशन के दिफा के लिए आर्मी हम मुहैया नहीं करेंगे। आप आर्मी मुहैया नहीं करोगे, जजेस आप मुहैया नहीं करोगे, तो हम मजम्मत किसकी करें? इस फौज के सरबराही करें या सुप्रीम कोर्ट के सरबराही करें? इसकी मजम्मत करें। सब सहूलतकार बने हुए हैं और आवाम का सबने मिलकर मैंडेट चोरी किया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई, ये जो इलेक्शन कराया है और ये चोरों को, ये आपने कंटेनर लगा के, पुलिस लगा के और चोरों से कसम उठवाया है। ये चोर सरदारी, तो मेरा ख्याल है आपको याद होगा 2008 में इसी नवाज शरीफ से कसम कुरान उठा के मुकर गया था। मुराद शाह हमारे यहाँ कुरान उठा के मुकर गया। तो झूठे ये लोग उनके कसम उठाने के लिए इलेक्शंस का आपने ये घेराव किया है। तो हमें अगर पुरअमन एहतजाज का भी हक आप नहीं देंगे, हमारी बहनों को गिरफ्तार करेंगे, हमारे जीडीए के कायदीन और उनके कारकुनों को, अवामी तहरीक के लोगों को गिरफ्तार करेंगे, ये कैसे होगा? अभी जो हम क्या कहें कि हमारे अभी आर्टिलरी पे दोस्त अभी गिरफ्तार खड़े हैं, हमारे जेयूआई के दोस्त को जख्मी, गिरफ्तार और शेलिंग की है, और ये हमारा जो ये एहतजाज होना था इसको रोका है। लेकिन ये एक तहरीक है जो आवाम की है, जो करोड़ों की है, करोड़ों आवाम की है, जो हक सच की
और इंसाफ की बात कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं कि इस पाकिस्तान में अगर इलेक्शनी निजाम के जरिए हुक्मरानी करनी है तो इसका शफाफ बनाना पड़ेगा। अगर इस तरह से करेंगे तो यकीनी तौर पे हमारा न सिर्फ सिंध लेकिन पूरा पाकिस्तान को आप गड़े में डाल रहे हैं, रिस्क पे डाल रहे हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान में ये फितना फैलेगा और कोई लोग इलेक्शंस को नहीं मानेंगे तो फिर आपके पावर सेंटर्स कहां गए? अगर इलेक्शन है जिसके लिए आप अपने नुमाइंदे और अपनी हुकूमत बनाते हैं वो आपने हक छीन लिया, आपके बड़े इदारों के सरबराहों ने जालसाजी में हिस्सा लिया, तो अब हम कहां जाएं? हम ये गुजारिश करते हैं कि ये इलेक्शंस जो जाली कराई गई हैं इनको वापस करके और नए इलेक्शंस का इनेकाद किया जाए, तभी जाके दुरुस्त होगा। अगर ये शफाफ ना हो सकेंगी, फौज को भी उसको पुरअमन बनाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जजेस को भी उसमें आना पड़ेगा। अगर मुल्क शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता तो फिर कैसे चलेगा आगे? इसलिए हम चाहते हैं कि मुल्क मजबूत हो, हमारे सूबे मजबूत हो और हम आगे चलें, लेकिन हमें इंसाफ के लिए चाह रहे हैं। हमें इसीलिए हमारी गुजारिश है कि ये हक की जदोजहद के लिए इलेक्शन शफाफ कराए जाए। मेहरबानी जी। ये थे साईं ज़ैन शाह साहब जो आपसे मुखातिब थे। आपके इल्म में ये बात आ चुकी है कि जेयूआई के हमारे दोस्तों के ऊपर शेलिंग की गई है, उन्होंने वहीं पर धरना दे दिया है और पूरा मुल्क इस आवाज को सुन रहा है। इस वक्त जो जाली नुमाइंदे हैं वो मुंह छुपाए फिर रहे हैं और जो असली नुमाइंदे हैं वो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। आपके आज के इस धरने को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं तमाम पार्टियों को जो इसमें शरीक हैं और इस धरने से अभी हमारा कलीदी खिताब होने जा रहा है। मैं जनाब सफदर अब्बासी साहब को दावत खिताब दूंगा और उसके बाद हमारे ये कायदीन प्रेस क्लब के अंदर जाएंगे, वहां पर मुशावरत होगी और फिर मीडिया के सामने आइंदा के लाएअमल का ऐलान होगा। लिहाजा अब मैं जनाब सफदर अब्बासी साहब जो जीडीए के डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब जो जीडीए के सेक्रेटरी जनरल हैं, पीर पगाड़ा के नुमाइंदे हैं और हम सब पे इस पर जितने लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे सीनियर साथी और सियासतदान हैं, मैं जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब को दावत खिताब दे रहा हूं कि आज के इस धरने से मुखातिब हैं। जनाब हाफिज नईम रहमान साहब, नजीम आसिफ शेख साहब, ज़ैन शाह साहब और मेरे सामने मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों दोस्तों, पीर साहब के फॉलोअर्स और जमात के हमारे साथी, फंक्शन लीग, जमात इस्लामी, जेयूआई, एसयूपी, पीटीआई के इंतहाई मेरे मोहतरम साथियों और मेरी छोटी बहनों और मेरे सामने बैठे मेरी सिंधियानी तहरीक की वो बहनें जिन्होंने आज सबसे पहले इस हुकूमत का आताब था और वो खुद तो रिहा हो कि जब आई तो वो यहाँ ही आके बैठी, लेकिन मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की। अभी भी मुजर रहूं जो हमारे कौमी अवामी तहरीक के नायब सदर हैं, अभी भी जो नाजरी मैदान में उनके साथ कई हमारे कारकुन जो है ना अभी भी गिरफ्तार है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं ये डिमांड करता हूँ कि आप फौरन से पेशतर जितने भी हमारे कारकुन जो है ना वो जेलों के अंदर है या थानों के अंदर है उनको आप रिहा करें। अगर आप रिहा नहीं करेंगे तो ये जद्दोजहद रुकने वाली नहीं है, ये जद्दोजहद रुकने वाली नहीं है। ये 12 तारीख को और 16 तारीख को ये फैसला हो चुका था। पीर साहब ने ये कह दिया था कि हम इस जाली इलेक्शन को नहीं मानते, हम किसी सूरत इस जाली इलेक्शन को कबूल नहीं करते और किसी सूरत में इस जाली इलेक्शन को कबूल नहीं करते। तो मेरे भाइयों और दोस्तों,
ये जद्दोजहद जो 12 और 16 को शुरू हुई, इसमें अब हम अकेले नहीं हैं, हम तनहा नहीं हैं। अब उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, उसमें पीटीआई भी शामिल है, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल है। और मैं यकीन से कहता हूं कि आज आपने रोक लिया, आज आपने ट्रकें वके कंटेनर खड़े करके आपने हमारे कारकुनों को रोका, लेकिन कब तक? कल हम कॉल देंगे, जब फिर तुम रोकोगे, जब फिर तुम सिंध को ब्लॉक करोगे, अब कराची को ब्लॉक करके कहोगे कि जी हमने जो है ये जाली असेंबली को जो है ओथ उठाने में उठा दिया। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आज आपने एक जाली असेंबली को, उनके मेंबरान को हलफ लेने दिलवाने के लिए आज आपने पूरी कराची बंद की है। आज कराची का जो सेंटर है, नर्व सेंटर है, ये इलाका वो सारा का सारा बंद पड़ा है। आज शहर फैसल सुबह से बंद पड़ी है और अभी आपने आप हद से गुजर गए। पहले तो आपने जमीयत उलमा इस्लाम की काफिलों को रोके रखा, फिर जब वो आए तो आपने कोरा कब्रिस्तान के मुल्क पे टीयर गैसिंग भी की है, लाठी चार्ज भी किया और राशिद को बोलो खुद जख्मी हुआ। मैं इस बात की मजम्मत करता हूं कि किस तरह आप जो ना जेयूआई के धरने को आप रोक रहे हैं। वो यहाँ आदम पुरमन है, हमें कहा गया है, हमें कहा गया है, हमारी ये जमात की सबकी ये कि हमें ये बाकायदा हमने एक तय किया है कि हम पुरमन है। सुबह से हम यहां पे बैठे, अब इतने धरने हुए, जमशेरों का धरना हुआ, मोरों का धरना हुआ, जमात इस्लामी के 50 फंक्शन हुए हैं यहाँ कराची के अंदर, पीटीआई के कई फंक्शन हुए, जेयूआई मुस्तकिल धरनों में। क्या आज एक पत्ता भी टूटा? एक पत्ता भी नहीं टूटा। और आपने जाली असेंबली को हलफ दिलाने के लिए 50 के सैकड़ों आपने कारकुन हमारे जेलों में डाले और सैकड़ों लोगों को आपने जख्मी किया। तो आप क्या समझते हैं कि फिर आप ये करेंगे? क्या अगली कॉल हम देंगे, फिर आप कराची और सिंध को बंद करेंगे? ये कैसे मुल्क चलेगा? ये कैसे निजाम चलेगा? मैं आपको बताता चलूं कि निजाम नहीं चल सकता, ये जाली निजाम नहीं चल सकता। हम कह चुके हैं इस बात को। जितनी जल्दी मैं पाकिस्तान की जुडिशल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ये बात कहता हूं कि जितनी जल्दी इस निजाम को खत्म करो उतना अच्छा है, वरना ये पाकिस्तान के गरीबों की हड्डियां तक को उतार के रख देगा, हड्डियों से गोश्त तक उतार के रख देगा। ये आगे आने वाले दिनों में आपको पता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की जो आने वाली कंडीशन है वो कहां लेके जाएंगे हमें? ये शहबाज शरीफ कहां लेके जाएगा? और ये जो जरदारी के एजेंट है कहते हैं ये हुकूमत में शामिल नहीं है। मैं आपको बताना चलूं, जरदारी तुम इस हुकूमत में शामिल हो, जो कुछ होगा, जो कुछ होगा वो पार्टी लेवल पे हम तुम्हें पकड़ेंगे, सिंध के बाद तुम्हारे गले में हाथ डालेंगे। तुम कैसे बच सकते हो उससे? कैसे तुम इस सिंध की बातें करके तुम कहते हो भाई मैं तो हुकूमत में नहीं हूं? तुम हो, तुम इस सारे निजाम की जड़ हो। तुमने पहले भी 16 महीने का जो निजाम कायम किया तुम उसकी जड़ थे, और आज भी ये जारी निजाम, और फिर अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें हमारे सदर में जाना चाहते हो। सिर्फ इसी के तुम्हारे पे केसेस है। 18 अरब का फ्रॉड कर चुके हो तुम, 18 अरब का फ्रॉड है, और ये हमारे फौजी भाई उन पे केस बना चुके हैं। कैसे आप उसको वापस भेज रहे हैं हमारे सदर के अंदर? किस तरह हो जाएगा हमारे सदर के अंदर जिस शख्स के ऊपर 18 अरब रुपए का फ्रॉड है, अभी भी उसका केस मौजूद है? तो मैं आपको बताता चलूं मेरे भाइयों, ये जद्दोजहद खत्म नहीं होगी। जाली इलेक्शन नामंजूर। मैं अपने तमाम कारकुनों को बशमूल मजदूर बदल रहा हूं जो कि जितने भी हमारे दोस्त गिरफ्तार है उनको वापस निकाले। मैं अपनी बहनों की जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूं और मैं मजम्मत करता हूं जो कुछ 111 फैसद हो रहा है। अभी भी वो आप लोगों को रोका हुआ है। हमारी कोई चीज हम पुरमन खड़े हम आप उनको आने देते। अगर आप कभी छोड़ते तो शायद हम एहतजाज करके चले जाते, लेकिन आप मजबूर किया हमें कि आप भी आकर हम आपके सामने खड़े। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जद्दोजहद जारी है, हमारी मुशावरत भी जारी है, और इंशाअल्लाह हम जल्द इंशाअल्लाह आज ही अगली कॉल भी आपको देंगे कि आगे आपको क्या करना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग बैठे, हमें जो है अंदर प्रेस क्लब के अंदर हम आपस में बात भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और फिर उसके बाद हम आई तक अल्लाह देखिए फिर हम यहाँ से उठेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।